Hello everyone, my name is Abhinandan Kumar Azad and welcome back to your favorite educational platform Santi Classes. Today we will discuss an extremely important and timely topic, human metapneumovirus, commonly known as HMPV. This virus has been making headlines worldwide due to its potential impact on public health. In this video, you will gain a clear understanding of what HMPV is, its symptoms, how it appears, and most importantly, how you can protect yourself and your loved ones. We will also explore recent research and global updates about this virus to keep you informed and aware. Towards the end of the video, I will explain everything in हिंदी as well. मैं इस वीडियो के अंत में सारी चीज़ें हिंदी में भी डिस्कस करूँगा. ठीक है, ensuring that all of our Hindi speaking audience can grasp these crucial details. So don't forget to like this video, share it with as many people as possible to spread awareness, and subscribe to Santi Classes for more such insightful content. Let's get started. Human metapneumovirus. What is this? Human metapneumovirus HMPV. HMPV is associated with a sustainable number of upper respiratory influence URI and episodes of actual otis media AOM. HMPV was first described in 2001 by Dutch investigators. It is a number of pneumovirus subfamilies of the Paraexumoviridae. This includes respiratory syncytial virus RSV. It is pluriomorphic with a liquid envelope, single standard RNA genome. These illnesses are neither clinically nor radiographically distinct from the same clinical syndromes caused by the other common respiratory virus. HMPV can cause surface infection in immunocompromised hosts. Transmissions of HMPV likely occurs via respiratory droplets and secretions similar to RSV. Clinical manifestations of HMPV infections are generally similar to those caused by the other respiratory virus and include bronchiolitis, crop pneumonia, asthma, endemic cough, pneumonia, asthma, etc. Hospitalization occurs more common in children or adults with underlying conditions such as prematurity, asthma, immunocompromisations, cardiopulmonary diseases. Gyroscopic spikes are visible in viral membranes and extruded nucleocapsid is visible below. Epidemiology. Annual epidemic during the late winter and early spring months in
temperate locations. The peak includes of HMPV usually occur in 1 to 2 months later than the peak of RSV. The percentage of HMPV detection varies from 6% to 15% amongst patients with acute respiratory tract infection. Peak age of hospitalizations for HMPV occur between 6 and 12 months of age. HMPV infected children had higher rates of underlying disease than RSV infected children. Upper respiratory tract symptoms including rhinorrhea, cough, fever, conjunctivitis, vomiting, diarrhea, rash are occasionally reported. Lower respiratory tracts syndrome most frequently associated with HMPV infections are bronchiolitis, croup, pneumonia, asthma, exacerbation. Clinical manifestations at various ages. Infancy, bronchiolitic pneumonia, croup, or asthma. Exudations of asthma, upper respiratory tract infections, acute otic media. Older children, adult, croup, laryngitis, bronchitis, asthma, exacerbation, pneumonia, elderly, exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Diagnosis: there is no commercially available rapid antigen test for HMPV. In general, reliable diagnosis of HMPV currently depends on molecular techniques based on standards or real-time RT-PCR assay. Treatment: the majority of children infected with HMPV can be managed at home with supportive care. For hospitalized infants and children, the primary therapies are supplementary oxygen and intravenous hydrations, bronchodilator, or corticosteroids. Prevention: recombinant HMPV strains that lack various genes, highly immunogenic, including neutralizing antibodies and proteins against challenge with wild-type HMPV. Several potential vaccine candidates are in development within 3 years of the discovery of HMPV. Thank you. Now I will discuss all these things in हिंदी. अब मैं सभी चीज़ों का हिंदी में आपसे चर्चा करूँगा कि ये वायरस क्या है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा है। तो ये क्या है, किस प्रकार से इसे देखना है, किस प्रकार से इसे संभलना है, फिर कोविड जैसा एकदम महामारी जैसा इसको फैला नहीं देना है और ना ही बहुत ज़्यादा हमें परेशान हो जाना है। क्या है ये भैया? ह्यूमन मेटाप्यूनोमिक वायरस, ठीक है, HMPV क्या है? तो कहता है HMPV का सबसे पहले तो हम लोग इसका इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या है ये, इसका परिचय लेते हैं ताकि परेशान ना हो। कहता सबसे पहले इसका जो खोज हुआ, इसको देखा गया HMPV को, ठीक है। तो कहता है इसको सबसे पहले देखा गया था 2001 में, डच शोधकर्ता द्वारा इसे खोजा गया था, ठीक है।
सबसे पहले इसे एक डच शोधकर्ता ने इसे देखा था। ये जो है वो पैरामाइक्सोवायराइड्स इस परिवार का एक न्यूमेरो वायरस है। ठीक है, जो है न्यूमेरो वायरस ये उप परिवार का सदस्य है जिसमें RSPV रिस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस भी शामिल है। कहता है यह एक लिपिड झिल्ली के साथ बहुरूपी होता है और उसमें एकल श्रृंखला RNA जीनोम होता है। और इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ये कि मैंने क्या बताया जी, कहता है यह एक लिपिड झिल्ली के साथ बहुरूपी होता है और इसमें एकल श्रृंखला RNA जीनोम होता है। कहता है इसका अगर हम लोग लक्षण वगैरह की बात करें तो कहता है कि ऊपरी श्वसन संक्रमण URI और तीव्र ओटोटिस मीडिया AOM का कारण बनता है। लक्षण जो है लक्षण अन्य श्वसन वायरस जैसा ही होता है, जिसमें शामिल है आपका क्या क्या शामिल है जी, तो पहला शामिल है ब्रोंकियोलाइटिस, दूसरा है क्रूप, निमोनिया, अस्थमा की तीव्रता, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। क्या क्या शामिल है जी, तो कहता है ब्रोंकियोलाइटिस, क्रूप, निमोनिया, अस्थमा की तीव्रता, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है जो इसके लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि प्रतिरोधकता या प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर गंभीर संक्रमण बीमारी का कारण भी ये वायरस बन सकता है। ठीक है, इसमें मतलब अगर आपका प्रतिरोधक क्षमता पे हमला करता है, प्रतिरोधक क्षमता जो आपके शरीर के अंदर है उसी पर ही हमला करता है, अगर वो कम गया तो जाहिर सी बात है ये और भी बहुत सारे महामारी का रूप ले लेगा, बहुत सारे और बीमारियां आपके अंदर पैदा कर देगा। कहा जा रहा है कि इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में भर्ती होने का संभावना कम बढ़ जाता है। तो कहता है ये जो है अस्थमा हो गया, इन सब चीज़ों में आपको हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती, इन सब चीज़ों में जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इन सब चीज़ों में आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की संभावना बन सकती है। ठीक है, ये इसका फोटो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका महामारी विज्ञान भी देख लेते हैं। कहता समशीतोष्ण क्षेत्रों में देर सर्दी और शुरुआती बसंत के मौसम में इसका प्रकोप जनरली देखने को मिलता है। समशीतोष्ण वाले क्षेत्र में सर्दी के देर सर्दी यानी सर्दी के लास्ट जब खत्म होने का समय होता है, यानी कि सर्दी का समय बीत जाता, मैंने कुछ बीत गया हो, तब जाके आपको इसका शुरुआती बसंत के मौसम में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। ठीक है, अभी आपका इसका प्रकोप देखने को मिलेगा। ठीक है, RSV के प्रकोप के 1-2 महीने बाद HMPV का संक्रमण चरम पर होता है, यह ध्यान रखिएगा। RSV के प्रकोप के 1-2 महीने के बाद ही HMPV संक्रमण चरम पर होता है। कहता तीव्र श्वसन संक्रमण वाले रोगियों में HMPV का पता लगाने के लिए कम से कम हमको 6% से 15% तक भिन्न होता है। तीव्र श्वसन संक्रमण वाले रोगियों में HMPV का पता लगाने की दर 6% से 15% तक भिन्न हो सकता है। कहता है कि और भी चीज़ें इसमें देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग देख चुके हैं। अगला देखते हैं कमज़ोर जनसंख्या वाला इस कंडीशन हम लोग देखते हैं। कहता मुख्य रूप से अगर हम बच्चों की बात करें, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स इंक्लूडिंग, कहता है कि अगर हम बात करें मुख्य रूप से बच्चा जो कि 6 से 12 महीना के बीच का बच्चा है और वयस्क, ठीक है, जिसमें कहता बच्चे और वयस्क जिसमें जन्म से पहले जन्म, अस्थमा, हृदय और फेफड़े की बीमारियां, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, ये सब चीज़ें अगर है उनको हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती होने की संभावना हो सकती है। कहता है संक्रमण का प्रसार कैसे होता है, तो कहता RSV की तरह श्वसन की बूंदों और स्रावों के माध्यम से ये फैलता है। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बातें करें, क्लिनिकल लक्षण की बातें करें, तो कहता है सबसे पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लक्षण की अगर हम बात करें, ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलेगा,
तो कहता है कि आपको नाक बहने की समस्या देखने को मिलेगी, खांसी की समस्या देखने को मिलेगी। अगर ये आपको वायरस लग गया है तो ये सब बीमारी देखने को मिलेगी। फीवर, बुखार देखने को मिलेगा। अगला है आपका कंजुगेटिविटीज, नेत्र श्लेष्मा लासोथ थूथ करके इस प्रकार का कोई बीमारी होता है वो आपको देखने को मिलेगा। नेत्र श्लेष्मा लाथोथ यानी कि आँख में जो आपका किच्ची वगैरह जिसको कहते हो वो बनना, वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेत्र में श्लेष्मा यानी कि आँख आना, आँख लाल होना और आँख में जो वो सट जाता, चिपक जाता है, उस प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है, उल्टी वगैरह, दस्त और चकत्ते जैसा बीमारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहता है कि आगे चलते हैं। निचले श्वसन तंत्र में अगर क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेगा जी, तो वो हम देखते हैं। कहता है निचला श्वसन तंत्र में आपको अगर लक्षण देखने को मिलेगा तो वह है ब्रोंकियोलाइटिस, या आपको ब्रोंकियोलाइटिस देखने को मिलेगा, या क्रूप देखने को मिलेगा, या इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको आता है निमोनिया, अस्थमा की तीव्रता, अस्थमा अगर है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आपको ये वायरस पकड़ता है तो। ठीक है, और भी अगर हम बात की करें तो विभिन्न आयु वर्ग में इसका जो लक्षण है वो अलग अलग दिख सकता है। जैसे अगर शिशु है, बच्चा है, तो बच्चा में आपको ये ब्रोंकियोलाइटिस दिख सकता है, निमोनिया दिख सकता है, ठीक है, क्रूप दिख सकता है, अस्थमा बढ़ जाएगा उसका, ये भी दिख सकता है आपको, या ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण देखने को मिल सकता है। जो श्वसन तंत्र ऊपर आपको सबसे शरीर के ऊपरी भाग में श्वसन तंत्र है आपका, उसमें आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। ठीक है, या फिर आपको तीव्र ओटिटिस मीडिया आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बड़े बच्चों की बात करें तो बड़े बच्चों या वयस्कों में क्या क्या समस्या देखने को मिल सकता है। कहता उसमें भी आपको कफ की समस्या मिल सकता है आपको देखने को। ठीक है, बड़े बच्चों में, ओल्डर चिल्ड्रन या एडल्ट वगैरह में, सॉरी कफ नहीं, क्रूफ आपको देखने को मिल सकता है। आगे आपको देखने को मिल सकता है लेरिंजाइटिस, दूसरा आपको बीमारी देखने को मिल सकता है ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की तीव्रता आपको देखने को मिल सकता है, निमोनिया आपको देखने को मिल सकता है, विशेषकर बुजुर्गों में आपको निमोनिया आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है जिसमें क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव प्लेमोनरी डिजीज, ये आप इसकी तीव्रता आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इसकी निदान की बातें करें, डायग्नोसिस की बातें करें, कैसे इससे हम बचें, तो कहता है एचएमपीवी से बचना है तो एचएमपीवी के लिए कोई त्वरित एंटीबायोटिक टेस्ट उपलब्ध नहीं है। अभी तक कोई एंटीबायोटिक टेस्ट उपलब्ध नहीं है, कोई एंटीबायोटिक आपको उपलब्ध नहीं है कि उसको खा लेंगे तो हो जाएगा, अभी तक दवाई नहीं बना है। अगर सही निदान करना है आपको, सही निदान के लिए आपको आरटी और पीसीआर पर आधारित आणविक तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा, या किया जाता है या करना पड़ेगा। यही उपाय है इसका, और अभी तक कोई दवाई नहीं बना है, बनेगा तो आपको पता लगेगा। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट की बात करें सर, अगर ये सब स्थिति है तो उपाय क्या है। ठीक है, कि अगर ये सब तो उपाय क्या है। ठीक है, इसके पहले कुछ और चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं। कहता है कि अधिकांश बच्चों को घर में अगर बचना है कि और उपाय रोकथाम क्या है भाई, उपचार ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस तो हो गया, तो कहता ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट में अधिकांश बच्चों को घर पर ही सहायता देखभाल करना पड़ेगा। अगर बच्चों को हो रहा है तो जनरली जो हो रहा है उसको घर पे ही बढ़िया से केयर कीजिए तो उसका ठीक हो जाएगा। अधिकांश बच्चों को घर पर ही सहायक देखभाल, सपोर्टिव केयर से उपचार किया जा सकता है। सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है। ठीक है, बच्चों को देखभाल करोगे, बच्चा में होता है जनरली, तो आपको उसका देखभाल करोगे तो ठीक हो जाएगा। अस्पताल में भर्ती अगर हो गए हैं शिशुओं के बच्चों के लिए, आपको क्या अस्पताल में आपको मिलेगा जी, कैसा सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन मिलेगा, आपको पूरक ऑक्सीजन मिलेगा। जो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा, यानी ऑक्सीजन का फिर से मारामारी होने वाला है, ऑक्सीजन मिलेगा आपको। दूसरा क्या है भाई, तो इंट्रान्यूमरस हाइड्रेशन यानी अंतःशिरा जलयोजन। ठीक है, हाइड्रेशन करने की जरूरत पड़ेगा उसको। अगला क्या है जी, कहता है ब्रोंकोडायलेटर और कार्डियोकॉस्टेरॉइड्स का, इसका आपको हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ सकता है। तो हॉस्पिटल को भी अभी से ही चाहिए कि व्यवस्था कर ले इन सब चीज़ों का। सरकार को भी चाहिए कि व्यवस्था कर ले, क्योंकि फैलेगा तो तय है। ठीक है, जैसे कोविड फैला उसी प्रकार से ये भी फैलना तय है। तो उस वक्त मारामारी हुआ ऑक्सीजन का, तो इस बार भी मारामारी होने वाला ऑक्सीजन का।
अगर फैलता है तो। वरना अब तो भाई जाहिर सी बात है, अब सरकारें ज़्यादा सजग होगी, क्योंकि पिछली बार हुआ है तो उसको पता है कि क्या क्या हमको पहले से करना है। अगला है रोकथाम, प्रिवेंशन क्या करना है, जिसका था पुनः संयोजित HMPV स्ट्रेन, ठीक है, रिकम्बिनेंट कहाँ है, रिकम्बाइंड HMPV स्ट्रेन्स जो प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, उसका पुनः संयोजन अगर हो जाए तो ये रोकथाम का तरीका है। अगला है आपका दूसरा, कहता है न्यूट्रांजिक्स एंटीबायोटिक के विकास को बढ़ावा देने के लिए टीके विकसित हो जाए, या हो रहे हैं तो हो जाए तो अच्छी बात है। तो कहता है HMPV के खोज के 3 वर्षों के भीतर संभावित वैक्सीन उम्मीदवार तैयार किए गए हैं, तो उन सब चीज़ों से इसको से बचा जा सकता है। तो इसमें आपको पहले से जानकारी रहे तो बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कोविड जैसा स्थिति ना हो जाए, इसलिए मैंने ये डिटेल वीडियो बना दिया आपको, ताकि जितना हो सके इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध मैं करवा पाऊँ, ठीक है। तो ये था आपका HMPV वायरस के बारे में जो भी जानकारियाँ, वो सारी जानकारियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और आपको निश्चित रूप से मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में मुझे लिखिए कि क्या आपको मदद मिला या नहीं मिला, और इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन पहले से पहुंच जाए। उस वक्त अकबकाहट मारामारी नहीं हो, तो कोविड में देखे ही थे कि क्या हाल हुआ था, आपके आसपास वाले कई लोग चल बसे। तो ये स्थिति इस बार ना हो, तो अपनी व्यवस्थाएं लोग कर लें। जो उस वक्त आप ऑक्सीजन सिलेंडर मारामारी कर करके उसका ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, तो अगर रखना तभी एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रख लो, ठीक है। तो उस वक्त मारामारी मत करना, ठीक है, जो मारामारी करना है अभी कर लो, ठीक है, जो व्यवस्था तुमको इतना ज़्यादा परेशानी है तो अभी से कर लो, वरना शांति बनाए रखना। तो चलिए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।